Hello to all my dear students. In this volume, this we will cover the rest of the part of chapter number 14. Keep posted. Okay. So this is the second volume of chapter number 14. Okay. So in 1838, an American inventor, Samuel Morse, and his assistant Alfred Vail developed a device known as electric telegraph. ठीक है, एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. So with the help of this device, coded signals could be sent far and wide. Coded signal भेजे जाते थे इससे दूर और पास की जगहों पर. The Morse code, as it came to be called, subsequently was an arrangement of dots and dashes. इसमें डॉट्स एंड डैशेस के स्टूडेंट्स अरेंजमेंट थे और इसी से स्टूडेंट सिग्नल भेजा जाता था. सो दिस सिस्टम लेटर टर्न आउट टू बी द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ टेलीग्राफी. ठीक है, तो टेलीग्राफी सिस्टम का सबसे पहला लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेज जो है ये बना. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो 30 कैरेक्टर्स पर मिनट कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू दिस सिस्टम. ठीक है, so you can see here he is very famous person, Samuel Morse, and the telegraph machine is there. Next, teleprinter. The government and the corporate organizations needed a faster medium of message transmission, okay, which was given to them by the teleprinters. So teleprinter, students, it was like a typewriter thing, and it was a means of communication that used to give code messages. Okay, it could send and receive messages at the other end in text format so that it was relayed. They could transmit messages in real time, and hence a typed chat could be carried on by this. एक टाइपिंग चैट जो है स्टूडेंट्स ये भेजा या रिसीव किया जा सकता था. तो ये टेलीप्रिंटर स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था. ओके, सो दैट कुड बी कैरिड ऑन बाय दिस. सो इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट फाउंड देम एक्सट्रीमली यूजफुल. सो इट वाज वेरी यूजफुल दैट टाइम. ओके, नेक्स्ट, telephone students, the most important invention in communication. Okay, पर्सनल और ऑफिशियल सब तरह से स्टूडेंट्स. टेलीफोन जो है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, he made something that is very useful even for today. अगर ये नहीं करते स्टूडेंट्स, so it was very hard for us to talk. Okay, when you are watching this video, the main the cause of this mobile phone is telephone, and the credit goes to Alexander Graham Bell. As a communication device, telephone needs no introduction today. कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है इससे अभी, क्योंकि हर जगह ये पता फेमस है. It enables two users to connect through telephone system and communicate easily without the barriers of distance. ठीक है, डिस्टेंस कितनी भी दूर हो, ये टेलीफोन सिस्टम से ये पॉसिबल था. Okay, next. So this technology was primarily invented by Alexander Graham Bell in 1876. कब बनाया Alexander Graham Bell ने? 1876 में बनाया. So this device has seen many changes since then, and today a more technologically advanced device called mobile phones or cellular phones or cell phones are in use, which are not bound by the wires. पहले तो ये स्टूडेंट्स वायर से चलता था. अब स्टूडेंट वायर सिस्टम इट्स ओवर, and now we are using cell phones. Okay, the tower, the signal, okay, it is used now for the cellular phones.
So this portable device now comes with many advanced features and can work almost like computers. So telephone gave birth to the cell phones, and cell phone now is working as like a computer only. Okay, so now fax. A fax is a faxable machine. It's an extension of the telephone, but it is used for transmitting printed material. तो ये प्रिंटेड मटेरियल को भेजने के लिए स्टूडेंट्स यूज़ होने लगा फैक्स. ओके, ये एक टेलीफोन की तरह ही है. आप इस पे नंबर पे डायल करके किसी को प्रिंटेड मटेरियल उस पर भेज सकते थे. ठीक है, इट कैन सेंड द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द मैसेज. ठीक है, मैसेज जो भी हो स्टूडेंट्स उसका एकदम कॉपी जो है सेंड होता था इससे. पिक्चर्स और प्रिंटेड मटेरियल टू बी रिलेड. Okay, sorry students. Okay, so that was it was used like that. Next, age of information technology. Computers have changed the whole idea of information flow today. कंप्यूटर्स ने पूरी दुनिया की जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करने की चीज़ें बहुत फास्ट कर दी. कि चेंज द होल आइडिया. वंस कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू नेटवर्क सिस्टम्स लाइक इंट्रानेट और इंटरनेट, ऑल द यूज़र लिंक टू द नेटवर्क गेट इंटरकनेक्टेड. ठीक है, जैसे ही नेटवर्क सिस्टम कोई भी यूज़ होता है स्टूडेंट्स, सारे जो यूज़र्स होते हैं जो उससे लिंक होते हैं उस नेटवर्क से, वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है, ओके, लेट्स रीड नाउ. इंट्रानेट. इंट्रानेट इज़ अ क्लोज ग्रुप कंप्यूटर नेटवर्क which is used by various organizations through internet protocol technology. Okay, internet protocol technology IPS के द्वारा स्टूडेंट्स ये कनेक्ट होता है एक दूसरे से. So by the means of the systems they can share information, data or other information within their group. अपने ग्रुप में स्टूडेंट्स ये शेयर हम कर सकते थे इंटरनेट के ज़रिए. ओके, स्पेशली बैंक, रेलवे और अदर वेरियस अदर बिग ऑर्गेनाइजेशन यूज़ दिस सिस्टम. इसी सिस्टम को वो यूज़ करते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन अमंग देम. क्योंकि स्टूडेंट्स अगर इंटरनेट पे करेंगे, ओके, अगर इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करेंगे तो बहुत सारे एक्सेस मिल सकते हैं. ठीक है, तो प्राइवेट रखने के लिए वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं. ओके, इंटरनेट. दिस इज़ अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू अ ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम. ठीक है, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड को ये कनेक्ट करके रख सकता है. सो दिस सिस्टम इज़ very wide and gives access to information on every large scale to the user as it uses the internet protocol suite. Okay, क्योंकि ये IPS okay, it uses the IPS, that is why it can access a wide range of networks. Okay, so it connects to the world wide web, www के वर्ल्ड वाइड वेब को कनेक्ट करता है. एंड द यूज़र कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क्स थ्रू दिस. तो कोई भी यूज़र स्टूडेंट बहुत सारे टास्क इसकी मदद से कर सकता है. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड नेटवर्क एंड वेब मीन्स कनेक्टेड. तो वर्ल्ड का वाइड जितना भी एक्सटेंड हो सकता है ये हो सकता है, और वेब मतलब जाल, मतलब इंटरकनेक्टेड. तो ये इंटरकनेक्शन स्टूडेंट सबसे स्ट्रॉन्ग, आज कोई इंटरकनेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग अगर है तो वो इंटरनेट का है. ठीक है, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, सम ऑफ दीज आर ब्रीफली डिस्क्राइब बिलो. तो फर्स्ट है ईमेल. आप किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं ईमेल आईडी बनाकर. जीमेल इज़ वेरी पॉपुलर नाउ. सो इलेक्ट्रॉनिक मेल.
दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, डिजिटल मेल। सिर्फ मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से ही ये स्टूडेंट्स ये मैसेज और या फिर पिक्चर्स ये सब कुछ शेयर हो सकता है। ओके, दैट हेल्प्स अ पर्सन टू सेंड द मेल्स टू द इंटेंडेड यूज़र्स। तो मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट्स, इस मोबाइल फ़ोन में भी ईमेल का ऑप्शन होता है। आप लोग जीमेल गूगल अकाउंट ये जानते होंगे। ओके, तो ऑल यू आर यूजिंग ऑलरेडी। Okay, next is one can send messages in a wide variety such as text messages, pictures or any other document format. So it is comparatively very cheap and incredibly fast. बहुत फास्ट है और बहुत ही चीप है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं, इसलिए सब लोग यूज़ भी करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक ऑल आर यूजिंग टू सेंड देयर मैसेजेस टू ईच अदर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, okay, all are knowing that Zoom, video conferencing, video call, video chat, okay, all this available. Okay, it is a wonderful gift of information technology. Through this the user can chat and see live the people around the globe connected to the system. तो ये आप सोच लीजिए स्टूडेंट्स, कभी हम दूर दूर तक बात नहीं कर सकते थे, अब हम दूर से देख सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। ओके, सो वेरी वेरी ग्रेट सिस्टम of the information technology. Next, flow of information. Internet today is the biggest channel for the unhindered flow of information around the world. Okay, today no information is bound by regional frontiers and barriers of language. ठीक है, लैंग्वेज है अदर है, कोई दूसरी लैंग्वेज है, उसके लिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट इतनी ज़्यादा है, यूट्यूब पर कुछ भी सीख सकते हैं। आपको कुछ सीखना है तो कोई एप्लीकेशन स्पेशल है उससे सीख सकते हैं। इंफॉर्मेशन या ज्ञान बढ़ता जा रहा है इससे, ओके, इंटरनेट से। तो आफ्टर द ब्रेक थ्रू ऑफ इंटरनेट, लिटरली एनी इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन इज नाउ जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम एवरीवन। कोई भी न्यूज़ है तुरंत फटाक से, जैसे ही हुआ वैसे ही तुरंत की तुरंत मीडिया में पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट के द्वारा वो न्यूज़ फैल जाती है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इन्फॉर्मेशन को बांटती है, अलग अलग जगह पहुंचाती है, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो एडवांस सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, उसी को हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इट इज़ द इन द पब्लिक डोमेन इज़ नाउ जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम एवरीवन. So search engine just as Google, Bing, etc. makes searching information very easy for everyone. Okay. Networking sites. Today there are many social networking sites like Facebook, Orkut, LinkedIn, Twitter, Facebook. So many. Instagram is there, and Zoom is there also, which provide a platform for people to meet and socialize with friends from around the world. Okay, mass communication. Now students, personal and public, both things are there comprising the communication. So mass communication is also very important like that. To communicate with the larger group of people, we need to have a greater medium of communication. तो बहुत ज़्यादा लोगों से जब हमको इंटरेक्ट करना हो एक साथ में, किसी से पर्सनली नहीं पर ग्रुप ऑफ पीपल से करना हो, तो हम मास कम्युनिकेशन मीडियम का यूज़ करते हैं। अब मास कम्युनिकेशन में स्टूडेंट क्या क्या आता है? तो दिस शुड हैव अ वाइडर रिसेप्शन विच रीचेस टू द पब्लिक फास्ट। तुरंत पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। ओके, तो ये नीड हमेशा आर्टिस्ट लोगों को होती थी जो गाते बजाते थे, फिल्म वाले लोगों को जो फिल्म बनाते थे, पॉलिटिक्स राजनीति के लोगों को, ओके, गवर्नमेंट को, इनको न्यूज़ पहुंचानी है पब्लिक तक फास्ट एज पॉसिबल। तो ये सब नीड थी। तो हैंस द मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस में आ गया धीरे धीरे करके। जैसे मोबाइल बना, मोबाइल फ़ोन बना, इंटरनेट, कंप्यूटर सब बना, तो मास कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं से आ गया था। ठीक है, द वेरियस मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इन प्रैक्टिस आर न्यूज़पेपर्स स्टूडेंट। डेली वी आर रीडिंग so many news of daily news, and each and every day what happens, the next day we get the
न्यूज़ ऑफ दैट, इंफॉर्मेशन ऑफ दैट अराउंड द ग्लोब। कोई दुर्घटना कहीं पे हो गई है, कहीं किसी की अच्छी न्यूज़ है, बुरी खबर अच्छी खबर, सब कुछ हम जो है ऑन द न्यूज़पेपर वी आर रीडिंग। ठीक है, मैगजीन वी आर रीडिंग, सो मेनी डिफरेंट आर्टिकल्स आर देयर इन मैगजीन। रेडियो, on radio also we are hearing important informations. Television, yes, television is also greater medium of knowledge which we get from, we get so much knowledge through television. Okay, the idiot box television. So cinema also we are watching movies and advertisements. ठीक है, प्रचार बहुत सारी चीज़ों का होता है, तो उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। कितनी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, स्कूल की एडवर्टाइजमेंट, ओके, मॉल की एडवर्टाइजमेंट, फूड स्टफ, सो मेनी एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर। तो सब कुछ ये कैसे हो रहा है जल्दी जल्दी? ओके, इट इज़ हैपनिंग थ्रू इंटरनेट एंड मास कम्युनिकेशन ओनली। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जैसा कि मैंने बताया आपको, इट हैज़ वेरी वेरी ओल्ड एंड पावरफुल मीडियम ऑफ रीचिंग द मासेस। इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड अपराइजिंग, they have played a vital role in uniting people against oppressive forces। ठीक है, न्यूज़पेपर हमेशा से पतले पेपर्स का जो बनता है, so it's always useful. Newspaper has also have been means of spreading not only the news but also messages of thinkers, philosophers and revolutionaries to the common people। ठीक है, बड़े बड़े लोग जो बहुत महान होते हैं, अपने कामों से उनके मैसेजेस को हम कॉमन पीपल तक पहुंचाया जाता है उनसे। तो दे सर्व एज अ टूल टू कीप पीपल इन्फॉर्म अबाउट द रीसेंट इवेंट्स। जो कुछ भी होने वाला रहता है उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। ओके, तो हर तरह की खबर स्टूडेंट डेली रिलेटेड टू नेशन, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ and education news, everything what is happening in the world and in the India and in the particular nation or city, everything we get to know। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से मैगजीन भी होती है, तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ठीक है, किसी के इंटरेस्ट के रिलेटेड है। सिमिलरली देयर आर मैगजीन और फैशन, particular magazines are or there are fashion, politics, entertainment that cater to a specific readership, like a reading book. So they are usually printed on periodic basis and in many languages. Okay, radio is an audio device which caters to a wide range of audience। जो सुनने वाले श्रोता हैं स्टूडेंट्स, उन तक पहुंचती है ये रेडियो। ओके, who was the inventor of radio, इसमें हम देखते हैं। So it broadcasts news, music, stories, gossip and other things that interest the audience in general. Since its invention in 1886 by Guglielmo Marconi again, okay, Guglielmo Marconi, radio has been a great source of entertainment। तो ये ऑडियो टावर से कनेक्टेड स्टूडेंट्स होता है, जैसे कि टेलीफोन होता है। तो अराउंड जब टीवी बना, ग्राहम बेल ने जब टीवी बनाया, तो उसी के आसपास के समय में भी गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने इसको बनाया, रेडियो। रेडियो हैज़ बिन वेरी वेरी ओल्ड एंड स्टिल यूज टुडे। ओके, सो एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन के लिए रूरल एरिया में, अर्बन पॉपुलेशन एरिया में हर जगह यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट इज टेलीविज़न। सो टेलीविज़न, who invented a television? Amazing device was made by John L. Baird, okay, 1926। तो जब कंप्यूटर बन गया, जब टेलीफोन बन गया, तब बारी आई टीवी की। The invention of television changed the entire way of accessing news and entertainment। न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के लिए एक ऐसा डिवाइस बन गया जो न्यूज़ भी दे सकता है, एंटरटेनमेंट भी करा सकता है। ओके, एवरीथिंग। It freed the relay of news and entertainment to people only in audio format and presented it in audio and visual format। पूरी तरीके से वीडियोग्राफी यूज़ होने लगी। जो हम वीडियो स्टूडेंट्स आप लोग जो देख रहे हैं, the video which is you are seeing, all this is a result of television। Okay, so it meant that people now could not only listen to them but also see the
places and creatures they had only heard from others. जो उन्होंने कहीं देखा नहीं, कहीं नहीं सुना, ऐसी चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स से बढ़ गई कि इसकी हद नहीं. ओके, तो टेलीविज़न पे हमने किसी सांप को नहीं देखा, हम उसको देख सकते हैं. कभी कभी हम कहते हैं कि हमने ये चीज़ को नहीं देखा, ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर टीवी पे उसको देख लिया तो हम कहते हैं कि टीवी पे येस वी हैव सीन दैट. सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी ग्रेट. टीवी वाज अ ग्रेट इन्वेंशन, स्टिल इन यूज़, एंड स्मार्ट टीवी इज़ ऑल्सो देयर, इंटरनेट टीवी इज़ ऑल्सो देयर. सो इन्वेंशन स्टूडेंट्स इंक्रीज़ करते जा रहे. पहले कुछ नहीं था, अब इतना कुछ है स्टूडेंट्स, और आगे भी बढ़ता जाएगा. ओके, सो जॉन लॉगी बेयर्ड, he invented this, so he was a great contribution. But television has seen many transformation during the course of time. So that only I was telling you. Today is internet TV. पहले इंटरनेट भी नहीं था, पहले टीवी भी नहीं था, अब इंटरनेट टीवी है. Okay, so earlier it was a big bulky device showing pictures in black and white. पहले black and white TV आती थी, फिर colored आया, फिर LCD आया, फिर LED आया, फिर LED स्मार्ट आया. ओके, एलईडी स्टैंड आया, अब बिग एलईडीज आती हैं. ठीक है, बहुत कुछ स्टूडेंट्स चेंज हो गया है. सो फर्स्ट, बट टुडे इट प्रेजेंट्स पिक्चर्स इन हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी एंड अ ग्रेट ऑडियो. सो इट इज़ वेरी स्लीक, ट्रेंडी एंड पोर्टेबल टू, कहीं भी लेके जा सकते हैं. ओके, सिनेमा इज़ पब्लिक मीडियम विच प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज इन ऑडियो विजुअल मोड जस्ट लाइक टेलीविजन. ओके, टेलीविजन के जैसे ही सिनेमा भी है. ठीक है, basically we see so many films in this. So it portrays messages related to society, culture and various other themes concerning the people. So it has been providing entertainment to people for a very long time now and has become a full-fledged industry. पूरी तरीके से सिनेमाटोग्राफी इंडस्ट्री पूरी बन गई है. सिनेमा स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स फिल्म से. फिल्म पूरी अब आप देख लीजिए, सिनेमा इज़ नॉट ओनली जस्ट एंटरटेनमेंट बट द कंप्लीट सोसाइटी. पूरी सोसाइटी बन गई है, और उस सोसाइटी को नाम दिया गया है इंडिया में, उसको कहते हैं बॉलीवुड. ओके, सिनेमा इंडस्ट्री उसको कहते हैं. ठीक है, फुल फ्लेज इंडस्ट्री इसलिए कह रहा है, इंडस्ट्री पूरी बन गई. सो इट ब्रिंग्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ टुगेदर. ठीक है, अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ मिलाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट इज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट यानी कि स्टूडेंट्स प्रचार स्टूडेंट्स होता है तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या चीज़ है जो हमारे यूज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट इज़ अ वे ऑफ पब्लिसाइज अ प्रोडक्ट इन द पब्लिक टू डोमेन इन सच अ वे दैट पीपल गेट इंटरेस्टेड इन बाइंग इट. उसका प्रचार होता है तो उसको ख़रीदने के लिए या यूज़ करने के लिए या सर्विसेज को यूज़ करने के लिए उसको लोग उस पर इंटरेस्ट रखते हैं. ओके, टू कैच अदर्स अटेंशन. टीवी पे इतना अच्छा स्टूडेंट्स ऐड आता है, you see that ad and get attracted to buy it. So advertisement is coming in video form, audio form and poster form, banner form, okay, pamphlet form. सब तरह के से advertisement आज हो रहा है. So this medium has been the most creative medium of mass communication. मास कम्युनिकेशन का सबसे ही एक क्रिएटिव मीडियम रहा है ये पोस्टर बांटने का. ठीक है, पर्चे बांटने का उस चीज़ के. पैम्पलेट्स, ओके, बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड इनोवेशन एंड थॉट. हमेशा इनोवेशन एंड थॉट के साथ ये बांटा जाता था, एडवर्टाइज किया जाता था चीज़ों को. सो इट ब्रॉट ग्रेट रिवॉल्यूशन एंड एडवांटेजेस टू दैट एडवर्टाइजमेंट. ओके, किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट की जाती थी तो उसका फ़ायदा बहुत होता था. सो इसलिए सारे कंपनीज आज देख लीजिए स्टूडेंट्स, हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री, हर चीज़ों का एडवर्टाइज कर रही है आज. और एडवर्टाइजमेंट स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आज पैसा खर्च होता है. आज स्टूडेंट्स बिलियन एंड मिलियन, करोड़ों और करोड़ों खरबों रुपए जो है एडवर्टाइजमेंट पे सिर्फ खर्च होते हैं. तो एडवर्टाइजमेंट इतना बड़ा इंडस्ट्री हो गया आज का. ओके, so it is used to sell products and ideas to the public. Advertisement are present everywhere in newspaper, magazine, radio, television, internet, etc. हर जगह स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट यूज़ हो रही है. एडवर्टाइजमेंट आर नॉट
ओनली डन फॉर कमर्शियल पर्पस बस ऑल्सो फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस। इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए भी एडवर्टाइजमेंट का यूज़ हो रहा है। सो गवर्नमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट गिव एडवर्टाइजमेंट टू कीप पीपल एट लीस्ट विथ मैनी इशूज़। बहुत सारे इशू से अलग रखने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। ओके, so students, that was all about the advertisement. So thank you students.